Let's start today's session. We're going to study the pyridine N oxides reactions. We did in the last lecture that synthesis of the pyridine N oxide and the synthesis of the quinoline by Schirup synthesis. Now, next the isoquinoline. So the isoquinoline are given the another name, that is the Bischler-Napielarski synthesis. Bischler-Napielarski synthesis. So in the step first, the condensation of the benzaldehyde with the nitromethanes in the presence of the base to give the nitroserine. This is the first step in which a benzaldehyde reacts with the nitromethanes and we will get the nitroserine. Again reacted with the this nitroserine is reacted with the lithium aluminum hydride. Reductions takes place and you will get the beta phenyl ethylamines. In the next step, step 3, that is acetylation of the beta phenyl ethylamines, followed by the heating with the PCl5 undergoes the cyclodehydration to give the 3,4 dihydroisoquinolines. This is the final product which reacts and we will get the final product, that is 3,4 dihydroisoquinoline. Next step is the reaction with the reducing agent, that is padallium, at the 100 degrees centigrade and give the isoquinoline as the final product. So this is all about the synthesis of the isoquinolines. Okay, by practicing you can understand how to synthesize. Okay, step by step writing practice. Next is the reactions of the pyridine N oxide. pyridine N oxide के reactions. अब pyridine N oxide के reaction में पहली reaction है halogenation. Halogenations में halogenating agent SOCl2 है along with the POCl3. We will get the ortho positions chlorine and the para position chlorine. Next step is the brominations. For the brominations, brominating agent is the Br2, is the brominating agents. And activating position is the meta position, so the bromine add at the meta positions. Next is the nitrations. So nitrating mixture we know concentrated HNO3 plus concentrated H2SO4 is the nitrating mixtures. So for nitration, this reacting nitrating mixture we use, and we will get the product at the para position, that is NO2, 4-para nitropyridine N oxide as the product. Next is the amminations. In the amminations, react with the pyridine N oxides, reacting agent NaNH2 plus liquid NH3, we will get the 2-aminopyridine N oxide as the product, along with the 3-para-aminopyridine N oxide as the final product. So we will get the N-butyl lithium reacted with the calcium and the hydrogen, means the metals, and metals reduction takes place and replace the lithium with the COOH. So in these reactions, we use the H2 gas, okay, for the hydrogenation reactions, and we will get the products at the ortho position, that is COOH. So directly COOH attached is difficult. That's why the butyl lithium is attached first, and then the COOH, then COOH is attached by using the carbon dioxide. So next reaction is the reduction of the quinoline. Reduction means the breaking of the double bonds into the single bonds, or addition of the hydrogens is also the reductions. So reactions, in the reactions, reduction reactions are there also. Okay, and oxidizing agents, oxidation means the increasing the quantity of the oxygen in the products, or the removing the hydrogens, okay, or increasing the double bonds in the process is called as oxidation. So these processes are involved in the step by step in the intermediate or in the final products.
First is the halogenations. In the halogenations, we are using the halogenating agent, that is Br2. Br2 is the halogenating agents. ये अर्लियर एग्जांपल्स पहले भी हमने देखा है, इससे पहले वाले में भी Br2 हमने हेलोजिनेटिंग एजेंट यूज किया है। तो ऐड कहाँ पे होगा? फिफ्थ और एट पोजीशन पे ऐड होगा, क्योंकि तो फिफ्थ और एट पोजीशन को हमने क्या बोला था? एक्टिवेटिंग पोजीशन है। नाइट्रेशन के अंदर नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या यूज करेंगे? HNO3 प्लस H2SO4 नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी फिफ्थ और एट पोजीशन पे नाइट्रेटिंग मिक्सचर NO2 ऐड होगा। उसके बाद अमाइनेशन, तो अमाइनेटिंग एजेंट कौन सा है? NaNH2 प्लस NH3 इज द अमाइनेटिंग एजेंट अलॉन्ग विद द KMnO4। तो अमाइनेटिंग एजेंट में NH2 ग्रुप ऐड होने वाला है, तो वो कहाँ पे ऐड होगा? सेकंड पोजीशन पे ऐड होगा। और दूसरा जो NaNO2 टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि -66 डिग्री सेंटीग्रेड पर टू पोजीशन पे ऐड होगा, और -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो जो है फोर्थ पोजीशन पे ऐड होगा। नेक्स्ट है रिएक्शन विद ब्यूटिल लिथियम। अब हमने इससे पहले ब्यूटिल लिथियम ऐड किया, तो लिथियम ऐड हुआ था, उसके बाद हमने वहां पर COH ग्रुप को ऐड किया था। लेकिन यहाँ पर ब्यूटिल लिथियम में हम क्या करें? आर्थो पोजीशन पे ब्यूटिल डायरेक्टली ऐड हुआ है, उसके बाद H2O को ऐड किए हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर ब्यूटिल कंप्लीटली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस हुई और ब्यूटिल वहां पर फॉर्म हुआ। तो इसमें जो है हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर टू ब्यूटिल क्यूलोनिल जो है स्ट्रक्चर को फॉर्म किए। यहाँ पे एरोमेटाइजेशन होता है, प्रोडक्ट के अंदर एरोमेटिक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको डबल बॉन्ड को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद रिड्यूसिंग एजेंट। कौन कौन से हैं रिडक्शन करने वाले? मेटल्स। तो मेटल कौन से? H2PT मेटल है, H2PT मेटल है। अलॉन्ग विद द हाइड्रोजनेशन एजेंट है हाइड्रोजन देने वाले CH2OH, HCl। तो रिडक्शन करेंगे तो आपको यहाँ पे याद रखना है स्पेसिफिक, ओके, कौन सा रिएजेंट यूज करे बाद में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहाँ पर देखिए H2PT यूज करने बाद में नाइट्रोजन वाला बॉन्ड, नाइट्रोजन वाले रिंग का बॉन्ड ब्रेक होता है। ओके, H2PT 12 NaCl यूज करते हैं तो नॉन यानी बेंजोनाइड रिंग का जो है बॉन्ड ब्रेक होता है। तो इस तरह से यहाँ बॉन्ड ब्रेक होते हैं। याद रखना है आपको, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये, वरना ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। लिथियम इन लिक्विड NH3 यूज करेंगे तो सिंगल बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे तो वहां पर भी नाइट्रोजन के बाजू वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो रिएक्शन एजेंट, रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके साथ में क्या यूज करेंगे रिएक्शन में? अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4 एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन होगा, रिंग बेंजोनाइड रिंग ब्रेक होगी और वहां पर COH ग्रुप आपको। उसके बाद जो है O3 फॉर्मेशन, O3 फॉर्मेशन। तो O3 फॉर्मेशन में यहाँ पे दो एल्डिहाइडिक ग्रुप मिलेंगे CHO प्लस pyridine 2,3 डाई कार्बोक्सिलाइड एल्डिहाइड। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे? जो ब्रेक करेंगे डबल बॉन्ड से, तो एक CHO ग्रुप बनेगा, दूसरा CHO ग्रुप बनेगा। हमको पता है ओजोन रिएक्शन किस तरह से होती है। ओके, O3 कंपाउंड ऐड करने की रिएक्शन है, तो उस वजह से यहाँ पर ब्रेक होके दो कंपाउंड मिलेंगे, दोनों भी एल्डिहाइडिक ग्रुप रहेंगे। तो ये याद रखना है हमको। उसके बाद है एसिटिक एसिड, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, पर एसिड है, पर एसिड इज एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पर एसिड क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा किसका? नाइट्रोजन आइटम्स का। तो क्यूनोलिन एन ऑक्साइड आपको एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद रिएक्शन ऑफ द आइसोक्यूनोलिन। अब आइसोक्यूनोलिन की भी पूरे रिएक्शन वैसे ही रिपीट करेंगे, दैट इज ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन। ओके, उसके बाद में ब्रोमिनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, फिर अमाइनेशन हो गया। ये सारे प्रोसेस हम फिर से रिपीट करेंगे। तो ब्रोमिनेशन के लिए एजेंट यूज करेंगे Br2। तो आयड कहाँ पे होगा? फिफ्थ और एट पोजीशन पे। नाइट्रेशन के लिए यूज करेंगे नाइट्रेटिंग एजेंट, दैट इज HNO3 प्लस H2SO4। ये भी आयड कहाँ पे होगा? फिफ्थ और एट पोजीशन पे होगा। अमाइनेशन करेंगे तो अमाइनेशन फर्स्ट पोजीशन पे ऐड होगा। ब्यूटिल लिथियम ऐड करेंगे तो वो ऐड होगा फर्स्ट पोजीशन पे, तो सेकंड पोजीशन पे नाइट्रोजन है, इसलिए फर्स्ट पे ऐड होगा। उसके बाद रिएक्शन विद रिड्यूसिंग एजेंट, H2PT रिड्यूसिंग एजेंट है, उसको ऐड करेंगे तो रिडक्शन करेगा कौन से? pyridine वाले रिंग का। उसके बाद H2PT12 नाइट्रोजन HCl यूज करेंगे तो बेंजोनाइड रिंग का रिडक्शन करेगा। लिक्विड लिथियम इन लिक्विड NH3 यूज करेंगे तो किसका रिडक्शन करेगा? डाइहाइड्रो आइसोक्यूनोलिन का रिडक्शन करेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अंदर यूज करेंगे तो वो क्या करेगा? जो pyridine रिंग का रिडक्शन करेगा।
रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो KMnO4 के साथ करेंगे तो ऑक्सीडेशन करेगा। बेंजोनाइट रिंग जो है उसको ब्रेक करेंगे, वहाँ पे COH ग्रुप लगाएगा। ओके, इस तरह से रिएक्शन हम जो है कंप्लीट करेंगे। तो ये रिएक्शन का पार्ट है, इसकी आप प्रैक्टिस करिए। रिमेनिंग पार्ट जो है हम इसका